Hi. So in this video lecture, we will talk about the second part of the mathematics of artificial neural networks. That is the more important portion, backpropagation and the gradient descent. Okay. So in the last lecture, we talked about the mathematics of neuron and feed-forward propagation. Let's just cover it briefly here. So this is neuron, right? Suppose we have three inputs here. Inputs can be of in, inputs can be of any number. I have taken three as an example. Okay, so and this is output z. This will be passed through activation function fz, and output activated output will be produced. Right, activated output. This is z. This is pre-activated output. You can say this is z. Okay, and weights are assigned. Weights, what do weights signify? The importance between that particular connection, right? Importance between x1 and this neuron. All right, so this was a neuron, as we discussed earlier. And what is a neural network? Interconnection of such neurons. Okay, so let's just again revise it. Let's take an example of we have input, three inputs. This is input layer. This is one hidden layer which has two neurons. This is another hidden layer which has two neurons, and the output layer. Okay, and there can be multiple number n number of hidden layers, and in each hidden layer there can be n number of neurons. But for the sake of simplicity, to understand what is going on, we will take only this example. This is x1 input, this is x2 input, this is x3 input. Okay, this connection, this connection. Yeah, लास्ट वीडियो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया था, इसलिए मैं फिर से थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पे. आई होप आप समझ में आएगा. This connection W1, this is W2, W1 dash, W2 dash, W1 double dash, W2 double dash. This neuron is A, this neuron is B, A dash, B dash. Okay. So as I discussed earlier, that y would be equal to sigma of I1 say, like n a I should say, yeah, xi wi plus b. इनका बायसेस भी होगा. ये तो इनपुट लेयर्स है. इनका बायस होगा बी ए, बी बी, बी ए डैश, बी बी डैश, ए डैश ओ. ये होगा वेट, ये डब्ल्यू ए डैश ओ, और ये है डब्ल्यू बी डैश ओ, and this would be BO, right? And this is the final output. Okay, this is just an example where we are understanding it, the forward propagation part. I have explained it in detail, but it was like a hell of a mess. We'll explain it again. Okay, so if we use this formula at each layer of neuron, at each layer, at each neuron of each layer, we can say that at first hidden layer, what we can say that what will the ya value? It would be x1 w1 plus x2 w1 dash plus x3 w1 double dash, right? Plus of course the bias, and this will be, as I said, passed through activation function. Why? Because this value is linear, and to capture complex patterns we pass this whole value to activation function. This is z, right? Activation function में pass होगा. Similarly, yb would be activation function में pass होगा. क्या होगा? x1 sorry yeah, x1 w2 x2 w2 dash plus x3 w2 double dash plus bb. मैंने पिछले वाले वीडियो में यहाँ पे w3 डबल डैश लिख दिया था. ये w3 डबल डैश नहीं होगा, ये
W2 डबल डैश होगा ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये हाँ, तो ये थोड़ा देख लेना, W2 डबल डैश होगा। तो ये हो गया YA YB, right? Okay. Similarly, we can calculate the outputs. YA dash output produced by the second hidden layer. Second hidden layer. The handwriting is very bad. I'm so sorry for this. Second hidden layer. How this will be calculated? This Y and YB will be the inputs for this hidden layer, right? So YA dash would be YA W, the weights, we know the assigned weights, W A dash, W A B dash, W B A dash, W B B dash, है ना? So what are going to be the values? W A dash plus Y B, W B A dash plus of course B A dash, है ना? This will be passed through activation function. ये y dash की वैल्यू होगी, y b dash वैल्यू क्या होगा, एक्टिवेशन फंक्शन में पास होगा y a w a b dash plus y b w b b dash plus b b dash, और ये एक्टिवेशन फंक्शन में पास होगा। तो ये था नेक्स्ट हेडर लैग का। ओके, अच्छा। अब सिमिलरली आउटपुट लेयर की बात करें, आउटपुट लेयर की बात करें तो ये जो दिख रहा है, this thing, या आउटपुट लेयर की बात करें तो ये क्या होगा, y a dash w a dash हो प्लस y b dash w b dash हो, ये मैं यही लिख देता हूँ, f y a dash w a dash o प्लस y b dash w b dash o प्लस bias of output neuron। ओके, ठीक है, तो ये ऐसे आउटपुट्स कैलकुलेट हुई है। So this was all about forward propagation। ये हमने पढ़ा था, सिर्फ क्लैरिटी आ गई होगी कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब बैक प्रोपगेशन समझने के लिए फॉरवर्ड प्रोपगेशन का मतलब क्या है, फॉरवर्ड प्रोप का मतलब क्या है? फॉरवर्ड प्रोप का ये मतलब है कि लाइक जो इनपुट्स हैं वो कैसे आगे बढ़ रही है लेयर बाय लेयर, है ना? इनपुट्स कैसे आगे बढ़ रही है लेयर बाय लेयर। तो इसलिए लाइक फोकस ऑन द नेम फॉरवर्ड प्रोपगेशन, है ना? इनपुट्स कैसे फॉरवर्डली प्रोपगेट कर रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट हिडन आउटपुट लेयर, है ना? कैसे चेंज हो रहा है, कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, तो ये फॉरवर्ड प्रोपगेशन हो गया, है ना? अब बैकवर्ड प्रोपगेशन की कैसे लाइक बैकवर्ड प्रोपगेशन की बात क्यों कर रहे हैं, उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? Example in the sense, suppose we have a data set. Suppose, assume this is the data set, right? This is output value that we have to predict. Right? This is x1 input. This is x2 input. मान लो x1 is let us say, what we can say, what we can set the x1 to be. You can let's say this x1 input is size of house, है ना?
size of the house. x2 input, let's say x2 input का क्या लें, हम ले सकते हैं इस size of house in acres हो गया, और x2 input हो गया number of rooms, मान लो, तुम assume कर लो, हाँ, और हम ये दे रखे हैं और हमें प्रेडिक्ट करना है ये y की वैल्यू, y, ये y है, प्रेडिक्ट करना है ना, ये y की वैल्यू है, प्राइस, हाउस प्राइस है। तो मान लो x1 का जो साइज है वो है मान लो 96 एकड़ है ना, और नंबर ऑफ रूम्स है उसमें 5 रूम्स है, बहुत ही आलीशान है ना, और उसका प्राइस मान लो तुम जो भी मान लो 12 करोड़ है, तुम मान लो बस। सिमिलरली ये एक घर की बात होगी, दूसरे घर में मान लो 2 एकड़ है दूसरा घर, यहाँ पे रूम्स 3 है और ये 66 लाख का है घर, है ना। सिमिलरली तीसरा घर मान लो, इसमें ये कितने एकड़ का होगा, ये मान लो 1.5 एकड़ का है, ये 2 रूम है और ये है तुम्हारा 50 लाख का। जस्ट अज्यूम, ऐसे बहुत सारे घर होंगे, बहुत सारे होंगे, मान लो 100 घर है, राइट। तो ये एग्जांपल लिया, तो हमें क्या, व्हाट इज द टास्क टू प्रेडिक्ट y, that is the price of the house given the size in acre and number of rooms, ठीक है, नंबर ऑफ रूम्स। तो अगर मान लो हमें साइज दे रखा है, नंबर ऑफ रूम्स दे रखा है, तो हमें लाइक उस घर का प्राइस प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। अब हम इसमें ऑफ कोर्स, अगर तुमने मशीन लर्निंग पढ़ी होगी तो वी कैन ऑफ कोर्स यूज ट्रेडिशनल models like linear regression, but for this video we will try to do this via neural network, ठीक है। तो मान लो 2 इनपुट्स हैं, हम x1 इनपुट मान लिया, x2 इनपुट मान लिया, x1 क्या था, साइज था, x1 x2 क्या है, नंबर ऑफ रूम्स, ठीक है। अच्छा, अब मान लो इस हिडन लेयर में 2 न्यूरॉन्स हैं, फर्स्ट हिडन लेयर में, सेकंड हिडन लेयर में भी 2 न्यूरॉन्स हैं, और ये आउटपुट है ना। अच्छा, here as an example, it's a very simple neural network. This is the ठीक है एग्जाम्पल है। अच्छा, ओके, अब हम न्यूरल नेटवर्क में इनिशियली क्या होता है, इनिशियली, वेट अ सेकेंड, इनिशियली ये जितने भी कनेक्शंस देखते हैं, ये तो दिस इज द जनरल आर्किटेक्चर, दिस इज द जनरल आर्किटेक्चर, हम लाइक हम ये मान लो ये आर्किटेक्चर हम यूज कर रहे हैं फॉर प्रेडिक्शन। आर्किटेक्चर मतलब ये कनेक्शन का जो ब्लूप्रिंट है ना। तो ये इस आर्किटेक्चर में थोड़ा थोड़ा क्लीन अप कर दूंगा, तो थोड़ा क्लीन अप हो जाए, हाँ। तो इनिशियली इस आर्किटेक्चर में जितने भी वेट्स है तुम्हारे, या जितने भी, ऑल द वेट्स आर रैंडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑल द वेट्स आर रैंडम, है ना, randomly assigned weights है, like you suppose ये जो भी values है w1 w1 डबल डैश, तो मान लो
W2 डबल डैश है ना, ये ए न्यूरॉन है, ये बी न्यूरॉन है, ये ए डैश न्यूरॉन है, ये बी डैश न्यूरॉन है ना। डब्ल्यू ए डैश, डब्ल्यू ये बी डैश है ना, बी डैश है, डब्ल्यू ए बी डैश, डब्ल्यू बी ए डैश, डब्ल्यू बी बी डैश, ये ओ आउटपुट है, ए डैश हो, डब्ल्यू बी डैश हो, है ना। और ये है ऑफ कोर्स, ये है जेड, ये है जेड, ये है एक्टिवेशन फंक्शन और ये है आउटपुट इनपुट। अब मैंने ये ऑफ कोर्स ये एक्टिवेशन फंक्शन वाला स्टेप बाकी न्यूरॉन के लिए लिखा है, वरना बहुत गंदा हो जाता। तो मान के चलो कि लाइक ये एक्टिवेशन फंक्शन इंक्लूडेड है, जैसे मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में समझाया है ना? ओके, थोड़ा फॉर दिस फॉर कंसिस्टेंसी मैं एक्टिवेशन फंक्शन वाला हटा देता हूँ ना, ज़रा कंफ्यूजन होगा। लाइक एक्टिवेशन फंक्शन लगा के ही आउटपुट आ रहा है, वाई? ओके, तो ये जितने भी वेट्स है तुम्हारे, जो भी है, W1 डबल डैश, W2 डबल डैश हो गया, W ए डैश, W A B डैश, है ना, W B A डैश, W B डैश, है ना। या फिर ये जो वेट हो गया, ए डैश हो, W B डैश हो, ये जितने भी वेट्स हैं, these are random. These are random. All of these weights are random initially. This is very important. Initially, all of these weights are random. Okay. अब तो क्या 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 होता है कि जो भी कैलकुलेशंस हो, जो भी कैलकुलेशंस हैं, मानो हमने करी कैलकुलेशंस, नो, लाइक थोड़ा न्यूरल नेटवर्क के बगल में करते हैं ऐसे, तो ऐसे से समझ में आएगा। I hope you are able to follow through. फर्स्ट लेयर का कैलकुलेशन करते हैं, है ना। तो वाई ए क्या होगा? ऑफ कोर्स एक्टिवेशन फंक्शन, हम एक्टिवेशन फंक्शन लाइक जनरल मान के चल रहे हैं, रेलू इज मोस्ट पॉपुलर एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। मैं ऐसे जनरल मान के चल रहा हूँ अभी के लिए। अच्छा, अब एक्टिवेशन फंक्शन में पास होगा, क्या पास होगा? x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस ऑफ कोर्स, अच्छा ये भी है बी ए बी बी बायस मत भूलना है ना, बी ए डैश। बायस क्या करवाता है? बायस कुछ नहीं है, बायस जस्ट गिव्स द फीलिंग ऑफ कांस्टेंट टर्म, लाइक y इक्वल टू mx प्लस c में जो c वाला जो पोर्शन होता है, वही लाइक बायस वैसे ही काम करता है ना। तो बी ए हो गया। सिमिलरली वाई बी अगर कैलकुलेट करें, एक्टिवेशन फंक्शन में क्या पास होगा? x1 w1 डैश, ये वाला। हम बी की बात कर रहे हैं, W1 डैश, X2 W2 डबल डैश, W1 ये डबल डैश, सर डबल डैश ही मान लो, मैंने नोटेशन में डबल डैश ही लिखा, तो डबल डैश ही मान लो, X2 W2 डबल डैश। आई मीन द वेट्स है ना, कनेक्शंस। ओके, ये वाई भी आ गया। अब नाउ these two outputs will be acting as inputs for this layer। तो वाई ए डैश लिख देते हैं, वाई बी डैश भी लिख देते हैं। what will be y a dash? क्या होगा? y a w a dash y b w b a dash प्लस b a dash, ये एक्टिवेशन फंक्शन में पास होगा। सिमिलरली एक्टिवेशन फंक्शन में पास होगा क्या? y a w a b dash y b w wait a second, w b b dash प्लस b b dash, ठीक है। तो दिस इज द नेक्स्ट हिडन लेयर। सिमिलरली अगर आउटपुट लेयर की बात करें,
तो जो आउटपुट है, जो आउटपुट आएगा वो दिस वुड बी द इनपुट्स फॉर दिस लेयर, है ना, इनपुट्स हो जाएंगे। तो क्या होगा वैल्यू, y a डैश w a डैश o प्लस प्लस y b dash w b dash o plus of course b naught, and this whole thing would be passing through activation function and this is the final output, है ना। तो ये calculations है। अब as I said earlier, these all these things are random, है ना। this is random, मैं इसमें बहुत emphasis दे रहा हूँ, random है। तो ये वैल्यू भी लाइक जो कैलकुलेटेड है ना, हम ऐसे लाइक ऐसे हम प्रेडिक्ट करेंगे। हमने जो वैल्यू ये जो साइज है, मान लो हम लाइक हम सिखा रहे हैं, है ना, बेटा या। तो as I said in the last lecture कि what is the purpose of this building artificial neural network, we are trying to implement brain artificially, है ना, through via neural networks, है ना। तो लाइक मान लो we want to implement this task थ्रू न्यूरल नेटवर्क्स। तो हमारा फर्स्ट पोर्शन क्या होगा कि सिखाना है इसे कि हाँ ये डेटा दे रखा है, दिस इज द गिवन डेटा एंड इस डेटा के अकॉर्डिंग तुम लाइक ये चीज सीख जाओ, है ना। तुम क्या सीखो, ये प्रेडिक्ट करना सीखो, ये डेटा दे रखा है तुम ये चीज प्रेडिक्ट करना सीखो, है ना। तो हम पे सिखा रहे हैं, हम कैसे सिखाएंगे, ये जो भी तुम्हारी कैसे सिखाएंगे, हम क्या करेंगे, ये जो भी वैल्यूज है, मान लो ये पहला हाउस की वैल्यू है, फर्स्ट हाउस की वैल्यू, सॉरी, तो फर्स्ट हाउस की वैल्यू है, ये जो x1 x2 है, ये हम न्यूरल नेटवर्क में डाल देंगे, ऐसे इस वाले आर्किटेक्चर में डाल देंगे। मान लो ये वाला आर्किटेक्चर हम यूज कर रहे हैं टू प्रेडिक्ट दिस, है ना। तो हम 96 डाल देंगे, 5 डाल देंगे, है ना। और इनिशियली मैंने बताया रैंडम होता है, बिकॉज ऑफ इट ये जो भी वैल्यूज प्रोड्यूस हुई है, दिस वुड बी काइंड ऑफ रैंडम, या फिर बहुत एरर देगा, है ना। तो ये x1 x2 रैंडम नहीं है, ये रैंडम है तुम्हारे वेट्स और ऑफ कोर्स बायसेस भी, दीज आर रैंडम, बायसेस भी तुम्हारे रैंडम है, ठीक है, बायसेस आर आल्सो रैंडम। तो ये जो भी तुम्हारे ये रैंडम हो गया, ये रैंडम हो गया, ये रैंडम है, ये रैंडम है, ये रैंडम है, ये रैंडम है, ये ये भी रैंडम है, और ये थोड़ा चेंज कर दे, ये डब्लू है ना, दिस इज डब्लू, या this is random, this is random, so similarly this is random, 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 and this is random। तो because of this जो values भी जो calculate हुई है, this won't be accurate। मान लो हम सिखा रहे हैं, है ना, सिखा रहे हैं, तो हम सिखाने से मेरा क्या मतलब है, हम पहले सिखाने से क्या मतलब है कि हम ये जो डेटा सेट है, इस डेटा सेट में हम सिखाएंगे, है ना। हम जो भी ब्रेन होता है, हमें पहले कोई भी चीज करने से पहले वो सीखनी पड़ेगी ना, हम पैदाइशी जीनियस तो है नहीं, है ना। वैसे कंप्यूटर भी जीनियस नहीं होता, तो हमें पहले सिखाना पड़ता है, फिर जैसे हम सीखेंगे उसके अकॉर्डिंग हम प्रेडिक्शंस करेंगे या उसके अकॉर्डिंग हम सोच सकते हैं। मतलब वैसे कंप्यूटर को लाइक ये बताने के लिए कि हाँ ये तुम चीज करो, ये प्राइस प्रेडिक्ट करो, है ना। तो ये सिखाने के लिए हम लाइक ये चीज करवाने के लिए हमें पहले सिखाना पड़ेगा। हम कैसे सिखाते हैं, डेटा न्यूरल नेटवर्क में डाल के, है ना। तो मान लो हम प्राइस प्रेडिक्शन सिखाना है इसे, तो हम ये डेटा सेट की जो भी वैल्यूज है वो डालेंगे और वैसे ही सीखेगा, ठीक है। कैसे डालेंगे, हम मान लो x1 की वैल्यू डाली 96 एकड़, x2 की वैल्यू डाली 5 नंबर ऑफ रूम्स, है ना।
ठीक है। तो एक्स ये डाली 96 एकड़ डाली हमने, एक्स टू 5 रूम्स डाली, जो जो भी रैंडमली असाइन है, पहले इनिशियली असाइन होते हैं पहले से, है ना, कोई भी रैंडम वैल्यूज होता है। और ठीक है, रैंडम वैल्यूज के अकॉर्डिंग ये जितने भी कैलकुलेशंस हुए हैं, उन कैलकुलेशंस के बाद हमारे पास ये y की वैल्यू आई है, ठीक है। 96 एकड़ और 5 नंबर रूम्स के वजह से के लिए y की जो वैल्यू आई है, तुम मान लो आई है कितनी, 9 करोड़। 9 करोड़ आई है, ठीक है। वाई 9 करोड़? बिकॉज दीज आर रैंडम, एज आई सेड, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज रैंडम। तो रैंडम वेट सुसाइड है, तो लाइक प्रोबेबिलिटी क्या ही होगी कि 12 करोड़ आएगा, एक्यूरेट आएगा, है ना। तो ये 9 करोड़ आया। मान लेट्स अज्यूम फॉर दिस, फॉर फर्स्ट रो, फॉर फर्स्ट रो, है ना। तो लाइक ये 9 करोड़ जो है, लाइक बाहर तुम देखो, फर्स्ट रो के लिए 96 एकड़ के लिए, और 5 96 एकड़ और 5 नंबर ऑफ रूम्स के लिए हाउस प्राइस कितना आ रहा है, 2 करोड़, ठीक है, मान लिया। सॉरी, 12 करोड़, हाँ, मैं भी 12 करोड़, 12 करोड़ आ रहा है ना। 96 एकड़ और तुम्हारे 5 नंबर ऑफ रूम्स के लिए 12 करोड़ आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब हमने ये वैल्यूज डाली न्यूरल नेटवर्क में, तो ये जो रैंडमनेस की वजह से, वेट्स के रैंडमनेस की वजह से हमारी 9 करोड़ वैल्यू आ रही है ना। 9 करोड़ वैल्यू आ रही है। तो दिस इज एन एरर कि एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये प्रेडिक्टेड वैल्यू है। दिस इज प्रेडिक्टेड, कैलकुलेशंस की वजह से प्रेडिक्टेड, इन द सेंस कि ये रैंडम है और ये रैंडम वेट्स की वजह से कैलकुलेशंस हुई है, और दिस इज प्रेडिक्टेड वैल्यू 9 करोड़, है ना। एंड व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू? Actual value for 96 acre and 5 number of rooms is y equal to 12 करोड़, है ना। तुम डिफरेंस देखो, ठीक है। तो ये गलतियां कर रहा है, गलती कर रहा है। अबे भाई मेरा, my Hindi is very weak, like I cannot write in Hindi, anyways, गलतियां कर रहा है। तो इस हम कैसे कैसे सीखते हैं, हम गलती तो करेंगे, ऑफ कोर्स गलतियां करेंगे। तुम ऐसे एनालॉजी से समझो कि लाइक हम कैसे, हाउ डू वी लर्न थिंग्स, है ना। सपोज लाइक हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं, सो वी आर लर्निंग साइकिलिंग, तो हम साइकिल में बैठ रहे हैं, साइकिल में बैठ के ऑफकोर्स लाइक गिरेंगे हमेशा, तो वो गलतियां हैं, है ना। गलतियां हैं, तो हम तो लाइक हम बाद में बाइक चलाना कैसे सीखते हैं, है ना, या फिर बाद में कोई बाद में लाइक साइकिल चलाना कैसे सीखते हैं हम जो भी गिर रहे हैं उनको, जो गलती करी उनसे हम सीखते हैं, है ना। तो ये जो गलती करी है न्यूरल नेटवर्क में, प्रेडिक्शन में 9 करोड़, जबकि एक्चुअल वैल्यू क्या है, 12 करोड़। तो ये जो गलतियां हैं, इसे हम रिड्यूस करना है ना, ताकि हम ताकि जो न्यूरल नेटवर्क है, ताकि जो एएनएन है, वो अच्छे से सीख पाए, अच्छे से सीख पाए, ठीक है। प्रेडिक्शन करना, गलतियां रिड्यूस करना है, क्योंकि लाइक तो एनालॉजी से मैंने बताया कि हम साइकिल चलाना तभी सीखेंगे जब हम साइकिल से, जिस गलती की वजह से हम गिर रहे हैं, उस गलती को हम रेक्टिफाई ना कर लेते, है ना, तभी हम साइकिल चलाना सीखेंगे, ठीक है। ओके, तो रेक्टिफाई करना है गलतियों को, कैसे करना है रेक्टिफाई? हम क्या करते हैं, मान लो वाई प्रेडिक्टेड 9 करोड़ आया है, वाई एक्चुअल है 12 करोड़, है ना। ये प्रेडिक्टेड, ये एक्चुअल, है ना। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एरर, एक एक चीज होती है तुम्हारे यहाँ डीप लर्निंग में, लॉस फंक्शन बोल के। लॉस फंक्शन क्या होता है कि लॉस फंक्शन के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, तो मैं इसको ऐसे डिनोट करते हैं, वाई वाई डैश, वाई सॉरी वाई कॉमा वाई हैट,
दिस इज द डिनोशन ऑफ लॉस फंक्शन, है ना। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं तुम्हारा। अगर तुमने बेसिक एमएल पढ़ी होगी तो तुम्हें पता होगा मीन स्क्वायर एरर क्या होता है, तुम्हें पता होगा क्रॉस एंट्रोपी लॉस क्या होता है ना। आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स, आई एम जस्ट जनरलाइज करना चाहता हूँ ये मैं, ठीक है। तो लॉस फंक्शन मीन स्क्वायर एरर लाइक दिस इज द फॉर्मूला, है ना। तो ऐसे क्रॉस एंट्रोपी लॉस का होता है, क्लासिफिकेशन के लिए होता है फॉर्मूला, ये होता है रिग्रेशन के लिए। तो ये दिस इज ऑब्वियसली रिग्रेशन प्रॉब्लम। इफ यू आर फेमिलियर विद बेसिक मशीन लर्निंग तो तुम भी समझ गए होंगे कि दिस इज रिग्रेशन प्रॉब्लम, है ना। तो मान लो हम रिग्रेशन प्रॉब्लम है, तो मान लो हमारा लॉस फंक्शन है एमएसई, मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हाफ ऑफ y माइनस वाई हेड का होल स्क्वायर, दिस इज। सो ये जो लॉस फंक्शन है दिस सिग्निफाइज द एरर, है ना। तुम देखो तुम्हें डिफरेंस वाली फीलिंग आ रही होगी, है ना। इट विल सिग्निफाइज द डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड। इट सिग्निफाइज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल, है ना। तुम नोटिस द फॉर्मूला हियर, y माइनस वाई हैट, ये क्या है, एक्चुअल है, और ये क्या है, प्रेडिक्टेड है ना। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उन्हें सिग्निफाई करता है, नॉट लिटरली बट थ्रू वाया वेरियस मैथमेटिकल लाइक फॉर्मुलेशन के चेंजेस से हम लाइक एरर को सिग्निफाई करते हैं इससे लॉस फंक्शन के थ्रू। तो अभी मैंने क्या बताया कि हमें सिखाना है, तो सिखाने के लिए लाइक व्हाट इज द मेन मोटिव सिखाने के लिए, लाइक हम कोई न्यूरल नेटवर्क कब सीखेगा, व्हेन बाय रिड्यूसिंग एरर, है ना, रिड्यूसिंग एरर। तो एरर अभी अभी मैंने बताया लॉस फंक्शन सिग्निफाइज एरर, है ना, सिग्निफाइज द एरर। सो वी कैन से दैट if you want to learn we shall reduce the value of loss function. This is the main motive है ना, लॉस फंक्शन की वैल्यू को हमें रिड्यूस करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे रिड्यूस, हम ये देखेंगे कि लॉस गलतियां हो कैसे रही है ना, गलतियां हो कैसे रही है, कैसे हो रही है। So you will be able to appreciate the fact that loss function depends upon the all the weights, all the biases, है ना। तो गलतियां इसलिए हो रही है बिकॉज ऑफ, मैंने पहले बताया था, रैंडम दिस randomness in the assignation, or I should say random initialization of randomness of weights and biases, है ना। ये जो भी weights और biases है, इनका जो रैंडम नेचर है, रैंडम नेचर की वजह से गलतियां हो रही है, लॉस फंक्शन ज्यादा आ रहा है। तो लॉस फंक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, वेट्स और बायसेस को चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो अभी हम आते हैं मेन पोर्शन में, दैट इज बैक प्रोपगेशन हो गया। सो व्हाट इज द मेन पार्ट हियर, द मेन पोर्शन इज द process of reducing error loss function by changing, because the values of weights and biases are in random nature, है ना। तो random nature है तो of course गलतियां करेंगे ना। तो लाइक एक sophisticated वे में एक proper direction देने के लिए कि हाँ ये गलतियां नहीं करनी है, तो हम क्या करेंगे, जो weights
वेट्स है, वेट्स ऑल द कनेक्शंस का mean, जितने भी कनेक्शन है, जितने भी लेयर के कनेक्शंस है, उन सारे कनेक्शंस का वेट्स और एंड जितने भी न्यूरॉन्स के बायसेस है उनको चेंज कर देंगे इससे ऐसे चेंज करेंगे कि ताकि जो एरर है और लॉस फंक्शन है वो रिड्यूस हो जाए, है ना, रिड्यूस हो जाए। तो यही प्रोसेस होता है तुम्हारा बैक प्रोपगेशन। This is it. Like this is the main significance of back propagation. The main aim is to reduce the value of loss function by wait a second, yeah, main aim is to reduce the loss function key value by changing the weights and biases ऑफ द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, है ना, क्योंकि उनकी रैंडमनेस की वजह से ही हमारा लॉस फंक्शन ज्यादा आ रहा है ना। तो लॉस फंक्शन को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेट्स और बायसेस को की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी सच दैट लॉस फंक्शन रिड्यूस हो जाए, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि हम थोड़ा चेंज करें, वेट्स और बायसेस की वैल्यू चेंज करें तो उससे लॉस फंक्शन बढ़ नहीं सकता है। हमें बढ़ाना नहीं है, हमें ऐसे ही चेंज करना है कि ताकि जो ये है ये रिड्यूस हो जाए। वेट अ सेकेंड, या हाँ, सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस। रिड्यूस करना, तो दिस इज व्हाट बैक प्रोपगेशन रियली इज। ठीक है। wait a second, what is happening, yeah, okay, so ये था बैक प्रोपगेशन का सिग्निफिकेंस। नाउ व्हाट इज द मैथमेटिकल डिटेल्स, इफ यू टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, लाइक बैक प्रोपगेशन से समझ में आ क्या होगा कि what is the significance to reduce the loss function such I mean to change the values of weights and biases such that we reduce the loss function, this is back propagation, है ना। तो हमें करते कैसे हैं, तो अब बारी आती है तुम्हारी ग्रेडियंट डिसेंट की, है ना। ग्रेडियंट डिसेंट, ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, इट्स एन algorithm or I should say rule by which we can algorithm or rule, ठीक है, इस रूल की वजह से हम लाइक वी कैन चेंज द weights weights और biases टू लॉस फंक्शन को। लॉस फंक्शन क्या होता है, मैंने क्या बताया था, लॉस फंक्शन सिग्निफाइज द एरर बिटवीन द एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड आउटपुट, है ना। तो इसे रिड्यूस करने के लिए एक रूल होता है ना। रूल क्या होता है कि हम एक रूल के अकॉर्डिंग हम वेट्स और बायसेस को चेंज करते हैं ताकि जो लॉस फंक्शन रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो दिस इज द एल्गोरिथम, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम, एंड व्हाट इज द रूल इज weight new equal to weight old minus eta delta L upon delta W old. Similarly, bias new equal to bias old minus eta delta L upon delta bias old. This is the rule. इस रूल के अकॉर्डिंग यानी कि मान लो हमें लाइक ऐसी चीज, हमें लाइक लॉस फंक्शन को रिड्यूस करना है ना। तो लॉस फंक्शन कैसे हम रिड्यूस करेंगे, ऑफ कोर्स वेट्स को चेंज करके अब वो एक रूल के अकॉर्डिंग करना है ग्रेडियंट डिसेंट, तो ग्रेडियंट डिसेंट ये बोलते हैं कि, है ना, तो चेंज करने के बाद जो नया जो वेट आया, नया जो वेट कैसे कैलकुलेट होगा, ओल्ड वेट माइनस ईटा, ईटा में बताऊंगा क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वेट, ये होता है, ठीक है। सिमिलरली बायस का भी सिमिलर फॉर्मूला होता है। सो लाइक इस फॉर्मूला के थ्रू लाइक जो भी हमारा वेट है ना, मान लो हमें
W12 का नया वैल्यू कैलकुलेट, अपने, वेट अ सेकंड जस्ट, अपने एग्जांपल से बात करते हैं। हमने जो एग्जांपल लिया था, हाँ, ये जो एग्जांपल था इसमें यू कैन सी जितने वेट्स हैं W1 हो गया। मान लो हमें W1 की नई वैल्यू निकालनी है। वेट अ सेकंड, या सपोज we want to find the new value. We want to find the W1 की न्यू वैल्यू निकालनी है ना। तो न्यू W1 को लाइक ऐसे चेंज करना है कि ताकि लॉस फंक्शन रिड्यूस हो जाए, है ना। तो ऑफ कोर्स न्यू वैल्यू आएगी W1 की, तो जो न्यू वैल्यू आएगी वो कैसे कैलकुलेट करना है। न्यू वुड बी W1 का जो ओल्ड वैल्यू था माइनस ईटा, मैं बताऊंगा, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा W1। दिस इज इट, है ना। W1 का न्यू वैल्यू क्या होगा, W1 ऑफ कोर्स ओल्ड। तो यही होता है, ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट gradient of the loss function with respect to that particular weight. So if I put it in words, how shall I put it, that the values of new weight would be equal to the old weight minus the learning rate। इसे हम learning rate बोलते हैं। मैं इस समझाऊंगा क्या होता है learning rate। eta multiply by delta L upon delta W1, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ लॉस फंक्शन with respect to weights। Same case with bias, same similar case with bias, है ना। So इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, वेट्स को चेंज कर सकते हैं ताकि लॉस फंक्शन रिड्यूस हो जाए। ये ईटा के बारे में मैं बताता हूँ, लर्निंग रेट। और ये ग्रेडियंट होता है ना, ग्रेडियंट लाइक हम कैलकुलेट करना। ग्रेडियंट इज बेसिकली द partial derivative of loss function with respect to that particular weight। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, you will apply chain rule here, ठीक है। how will you apply chain rule, for example the loss की फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला y माइनस y हैट का स्क्वायर, ठीक है। और इसमें भी y हैट की वैल्यू क्या होती है, एफ जेड होती है। z की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई प्लस बी आई, है ना। तो लाइक डिपेंड कैसा है, ये लॉस फंक्शन वाई हैट पे डिपेंड है। वाई हैट एक्टिवेशन फंक्शन में डिपेंड है। एक्टिवेशन फंक्शन जेड में डिपेंड करता है, और जेड डब्ल्यू आई और बी आई में डिपेंड करता है ना। तो हमें मान लो बाई चेन रूल, हमें चेन रूल लगाना है यहाँ पे। या बाई चेन रूल वी कैन से डेल्टा एल अपॉन डेल्टा डब्ल्यू आई, है ना। मान लो डब्ल्यू कोई भी आईएफ वेट, हमें आईएफ वेट इन द सेंस कि कोई भी कनेक्शन का वेट मान लो, हमें लाइक उसका ग्रेडियंट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, वी शैल यूज चेन रूल। हाउ वी विल यूज चेन रूल, लाइक दिस। है ना, मान लो हमें ग्रेडियंट निकालना है डेल्टा एल विद रिस्पेक्ट टू W1, वो वाली वेट, है ना। तो हम ये करेंगे दैट्स इट। सिमिलरली हमें मान लो डेल्टा एल विद रिस्पेक्ट टू दैट ए न्यूरॉन का बायस, कैसे कैसे करेंगे, डेल्टा ग्रेडियंट ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द प्रेडिक्टेड
gradient of predicted output with respect to activation function, gradient of activation function with respect to the pre-activated output, and the gradient of pre-activated output with respect to delta A the bias है ना, बी ए जो भी है बी, ये बी है. सो ये चेन रूल से हमने ये ग्रेडियंट्स ऐसे कैलकुलेट करते हैं. दिस इज हाउ प्रोसीजरली वी कैलकुलेट ग्रेडियंट्स. ठीक है, तो ऐसे सारी वेट्स और बायसेस की वैल्यूज चेंज होंगी है ना. एंड चेंज कैसे होगी, सच दैट लॉस फंक्शन रिड्यूस हो जाए. चेंज कैसे करना है कि हमें मान लो कोई कोई भी वेट हो गया, हमें मान लो W2 चेंज करना है, तो यहाँ पे लॉस फंक्शन के हम क्या करेंगे, लॉस फंक्शन का उस W2 वेट के रिस्पेक्ट में लॉस फंक्शन का ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे. फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि उस W2 को चेंज करना है, तो W2 न्यू वुड बी इक्वल टू W2 ओल्ड माइनस ये लर्निंग रेट मैं बताऊंगा मल्टीप्लाई बाय दैट कैलकुलेटेड ग्रेडियंट वाया दिस. ठीक है, वैसे बायसेस चेंज होंगे. तो ऐसे ही हम लाइक वी कैन अचीव टू रिड्यूस द लॉस फंक्शन. ओके फाइन. तो ये हो गया हमारा लॉस फंक्शन की कहानी सब कुछ. और वी आर ऑलमोस्ट डन विद द मैथमेटिक्स पोर्शन. नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट लर्निंग रेट है ना. लर्निंग, थोड़ा लर्निंग रेट के बारे में पढ़ लेते हैं. ये जो मैंने ईटा बताया ये है लर्निंग रेट. ये क्या करता है, लाइक दिस signifies the degree of which degree to which ये like degree to which the weights of biases will change है ना. लाइक कितनी तेजी से तुम्हारा वेट्स ऑफ बायसेस चेंज होगा है ना. तो फॉर्म यू सी द फॉर्मूला व्हाट इज सेड. थोड़ा सोफिस्टिकेटेड नोटेशन यूज करते हैं. W प्लस इक्वल टू W माइनस ईटा डेल्टा एल W. ठीक है, कोई भी वेट है हम ऐसे कैलकुलेशन करते हैं है ना. तो ये जो ईटा है ये सब ईटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि लाइक कितना चेंज करना है हमें है ना. तुम ग्राफ की तरह मान लो, लाइक सपोज दिस इज द लॉस फंक्शन वैल्यू, दिस इज लॉस फंक्शन है ना. लॉस फंक्शन की ये दिस इज लॉस फंक्शन है एंड दिस इज वेट्स. दिस इज वेट मान लो W में ऐसे डिपेंड कर रहा है लॉस फंक्शन में. तो हम मान लो इनिशियली कोई भी रैंडमनेस की वजह से लॉस फंक्शन की वैल्यू ऐसी है ना. और कोई भी रैंडम वेट. ठीक है, तो लॉस फंक्शन को रिड्यूस करना है तो हम ग्रेडियंट डिसेंट लगाएंगे. ग्रेडियंट डिसेंट से क्या होगा कि लॉस फंक्शन की वैल्यू ये नीचे जाएगी है ना. हमारा मेन एम क्या है कि हमें ऐसे वेट्स की वैल्यूज लानी है कि लॉस फंक्शन मिनिमम हो जाए है ना. तो लाइक हम ऐसे वेट्स अपडेट करेंगे, ऐसे वेट्स अपडेट करेंगे ताकि जो लॉस फंक्शन है ये नीचे जाए है ना. अभी जो जिस रेट से ये लॉस फंक्शन की वैल्यू नीचे जाएगी, जिस रेट से लॉस फंक्शन लॉस मिनिमम लॉस लॉस की तरफ जाएगा, वही हमारे ये लर्निंग रेट दिखाता है ना. लाइक मान लो अगर हम कुछ ज्यादा ही लर्निंग रेट डाल दे तो ये जो कन्वर्जेंस है, थोड़ा ऑफिशियल टर्म हो गया कन्वर्जेंस. कन्वर्जेंस लाइक approach the process by which the value of loss function approaches. Value of loss function. Wait a second. Wait a second. I'm just थोड़ा just wait a second. थोड़ा uh, um, just wait a second. I'm just थोड़ा इशू हो गया था.
मेरे एंड से आई विल जस्ट सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस. Sorry for this disturbance. Okay. Yeah. ठीक है. Okay. I'm very sorry for this disturbance. तो it was unexpected. So मैंने क्या बताया कि लॉस फंक्शन लाइक हम जैसे जैसे वेट्स अपडेट करते हैं, जैसे जैसे वेट्स और बायस अपडेट करते हैं, वैसे वैसे लॉस फंक्शन किस रूल के अकॉर्डिंग, ग्रेडियंट डिसेंट के अकॉर्डिंग, है ना, ये ग्रेडियंट डिसेंट के अकॉर्डिंग हम इस रूल के अकॉर्डिंग अपडेट करते हैं, लॉस फंक्शन डिक्रीज होता जाता है ना. तो ये डिक्रीज होने का रेट, दिस इज लर्निंग रेट, लाइक कितनी तेजी से डिक्रीज हो रहा है. लाइक सपोज अगर ईटा बहुत ज्यादा हो गया, है ना, तो ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि हम अपडेट करते ही चले जाए और लॉस फंक्शन मिनिमम की जगह यहाँ पे कहीं पहुंच जाए. मिनिमम, ये मिनिमम नहीं है ना. लाइक हमें एकदम लॉस फंक्शन को एकदम रिड्यूस करना है टू द पॉइंट दैट इट इज एट द मिनिमम, है ना. तो वैसे समझ सकते हो विद द एनालॉजी दैट हमें में जिंदगी में घाट जितने भी लॉसेस है ना, मॉनेटरी लॉसेस होगी वो हमें कम से कम चाहिए, है ना, ताकि हम अच्छे से जी सके. वैसे न्यूरल नेटवर्क के लिए भी हमें लाइक जो ये जो लॉस है, now you will be able to understand that ये जो loss, this loss thing needs to be minimized, needs to be at the minimum, and so that prediction है वो सबसे बेस्ट हो सके. So for to ensure best prediction, we will continuously update the weight such that loss reaches the minimum loss. But ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लो हम लर्निंग रेट विच इज द रेट एट विच द at which the value of loss will reach the minimum value, this is learning rate. तो लाइक अगर हम मान लो लर्निंग रेट को बहुत ज्यादा रख दें, है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि लॉस फंक्शन इंस्टेड ऑफ रीचिंग द मिनिमम वैल्यू इट रीचेस लाइक लेट्स से here l dash, l dash is not l min. So ये प्रॉब्लम हो सकता है ना. सो वी हैव टू बी वेरी, ये जो ईटा की जो वैल्यू है, दिस वैल्यू ऑफ ईटा और I should say learning rate should be such that L reaches L min. Eta, what is eta? It is basically the rate at which the loss function, the value of loss function reaches इट्स मिनिमम वैल्यू. ज्यादा हो ईटा, ईटा ज्यादा हो गया तो ये एल डैश में पहुंच जाएगा, विच ऑफ कोर्स विल नॉट बी एल डैश में पहुंच जाएगा, विच मींस दैट इट passes the minimum value, which is not desirable because we, for best prediction, for best performance, we need the loss function to be as minimum as possible. Similarly अगर लर्निंग रेट बहुत ही कम हो गया ना, तो लॉस फंक्शन जो ये जो रास्ता है एल से एल मिन तक जाने का, ये बहुत स्लो होगा, स्लो कन्वर्जेंस. ओके. सो वी हैव टू एंश्योर दैट ये इसकी सही वैल्यू हो, है ना. So this was it for the mathematics of neural networks. I hope you were able to follow it. यही था neural networks की mathematics में. So and so we shall realize again that what was the loss function. It signifies the difference between actual value and the predicted value.
बैक प्रोपगेशन क्या होता है कि लाइक इनिशियली वी assign random values of weights and biases, है ना, because of which the value of loss function or the difference between the actual value and the predicted value is very high. So the value of loss function is very high, है ना, because of this random assignation of weights and biases. So we will change weights and biases such that the loss function is reduced. So this process of changing the weights and biases such that the loss function is reduced is called backpropagation, है ना? And the rule through which we change or update the weights and biases is called gradient descent. And what was gradient descent? We follow this particular mathematical formula. We suppose we want to update a particular weight. So we will, what will we do? We will calculate the gradient of that particular weight with respect to the gradient of loss function with that particular weight by using chain rule, and then we will apply this particular gradient descent rule, and thus the weights or the biases will be updated and the loss function will reduce, and do it we will do this till loss function reaches its minimum value, है ना, minimum value. So uh, loss function reaches its minimum value, है ना. And what was learning rate? Learning rate is the rate at which rate rate at which loss reaches Lmin. ये ईटा हो गया, है ना. ईटा अगर ज्यादा बड़ा हो गया तो ऑफ कोर्स इट वोंट रीच एलमेन, और ईटा अगर ज्यादा छोटा होगा फिर भी रीच नहीं करेगा, इट वुड बी स्लो. So we want a trade-off. Okay. So this was it for the mathematics of artificial neural networks. I hope you were able to follow it. Thank you.